the promotional price strategy, price product, matlab rural marketing mix is already completed, right? In today's class, we are going to understand that what are the various problems in the rural market. And the second topic is that how the personal selling is one of the effective tool for the promotion in the rural market. So we are going to do these 2 points, these two topics. So let's start with the problem. We already discussed about the problem of the rural market. I already told you about the differences between the urban and the rural market. It is very high. Now we cannot compare, we cannot provide the similar goods, whatever we are providing to the urban market. Even the sale is not similar, the type of consumers are not similar, their priority, their need is totally different from the urban areas, right? अगर हम बात करें आज भी कि अगर किसी का भी कोई बर्थडे पार्टी ओकेजन होता है तो इन अर्बन एरियाज पीपल लाइक टू गो टू द रेस्टोरेंट एंड इन द रूरल एरियाज majority of the time they are basically celebrating it in their home, ठीक है, by making the sweet dishes and all. So this is basically, this is only, I give only this example to elaborate that there is a lot of difference between the priority, affordability, availability. ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि रूरल मार्केट में गुड्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है कंपैरेटिवली टू अर्बन मार्केट बिकॉज ऑफ दे आर नॉट एबल टू परचेज इट अफोर्डेबिलिटी की वजह से. अब हम बात करते हैं कि चैलेंजेस क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो रूरल मार्केट में एक मार्केटर को फेस करना पड़ता है. व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस इन द रूरल मार्केट. ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. फर्स्ट पॉइंट इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. फर्स्ट पॉइंट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सो जो रूरल मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिसको बीपीएल कहते हैं, ठीक है, जिनको राशन कार्ड की सुविधा मिलती है, फैसिलिटी मिलती है. सो अ लार्ज part of the population in the rural areas are basically below the poverty line. poverty line से नीचे हैं, ठीक है. ऐसे सिचुएशन में जो रूरल मार्केट है वो अंडर डेवलप्ड है. वहां पर जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है that the companies or marketers are making, that is totally different from the urban area. So we can say that the people are not able. क्लास कौन बच्चा है जो अनम्यूट है? आप सोच सकते हैं कि if the people have, मतलब इतनी भी अफोर्डेबिलिटी नहीं है that they are able to purchase the product of the basic needs. बेसिक नीड्स वाले भी प्रोडक्ट खरीदना उनके लिए बहुत मुश्किल है. जैसे जो हमारे बेसिक नीड्स क्या होते हैं, पहले तो 3 चीजें थी, ठीक है, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स. बट नाउ द 2 more things are added to this and that is health facilities and educational facilities, right? So अगर बेसिक नीड ही नहीं है, बेसिक नीड को फुलफिल कर पाना मुश्किल हो रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि कैसे वो गुड्स की प्रायोरिटी देंगे, गुड्स को, एडिशनल और लग्जरियस गुड को, या एफएमसीजी में स्नैक्स को और बिस्किट्स, मिक्सचर, ये सब भी खरीदना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा जब वो बेसिक चावल, दाल और अनाज नहीं खरीद पा रहे. तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरी वेरी लो इन रूरल एरियाज ड्यू टू द मेजॉरिटी और लॉट ऑफ पीपल आर अंडर द या बिलो द पॉवर्टी लाइन. So this is the first challenge for the marketers, that how they are going to set the marketing strategy. It is quite difficult for them. Second one is low literacy rate. Low literacy rate. अच्छा, लिटरेसी जो है, यहाँ पर एजुकेशन और लिटरेसी में डिफरेंस होता है. एजुकेशन जो है that is about what is, it's about your level of literacy as well as your social mind. So that is education, ठीक है. इसलिए हम कहते हैं ना कि if educated लोग जो होते हैं वो ethical ज्यादा होते हैं, ऐसे बोला जाता है. Literacy is something when the person is able to write or sign with his name either in Hindi or English, ठीक है. अगर इंग्लिश या हिंदी किसी में भी अपना नाम लिख पा रहा है पर्सन और साइन कर पा रहा है पर्सन, तो वो पर्सन लिटरेट कहलाता है, ठीक है. अब आप सोचिए कि if the people are not very much literate in the rural areas, can the company is able to sell their product with his name? ठीक है, बहुत सारे तो आज भी ऐसे रूरल पीपल हैं that they are basically recognizing the goods by its color, by its packaging and all, है ना, because they are not able to read the name of the company or the name of the product. So this is basically there in the rural market. रूरल एरियाज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर आती है तो वो कम्युनिकेशन की आती है, क्योंकि लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा लो है और इसी वजह से आप कई बार कुछ कम्युनिकेशन मीडियम को यूज भी नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे नोस दैट दे आर नॉट एबल टू गेट द पॉइंट, है ना.
और आज आपको आपको हम लोगों ने मतलब जब हम लोगों ने प्रमोशन किया था तो उसमें भी मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा रूरल एरियाज में आपका टेलीविजन के थ्रू कम्युनिकेशन चल रहा है और लोकल लैंग्वेजेस में भी कई जगह पे कम्युनिकेशन होता है। जैसे बिहार में आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट भोजपुरी में भी सुना होगा, दिस इज द लोकल लैंग्वेज ऑफ बिहार, है ना, लोकल एक डायलेक्टिक है, डायलेक्ट है एक तरीके से। चलिए, सो नेक्स्ट वन इज लो लिटरेसी लेवल की वजह से आप बहुत सारी चीजें उनको इलाबरेट नहीं कर सकते। वो लेबलिंग, अगर किसी प्रोडक्ट के बैक साइड लेबलिंग है, जैसे इस बॉटल के बैक साइड की पूरी लेबलिंग है, दे आर नॉट एबल टू रीड इट। सो कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है आपके रूरल पीपल को, रूरल मार्केट में लोगों को, राइट। नेक्स्ट वन इज लो पर कैपिटा इनकम, लो पर कैपिटा इनकम, लो पर कैपिटा इनकम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है पर पर्सन क्या इनकम इंडिया में जेनरेट हो रहा है ना। तो अगर हम सिर्फ रूरल मार्केट की बात करें तो हर एक पर्सन का अगर हम एक एवरेज निकालें तो हर पर्सन का जो इनकम है दैट इज वेरी अनसेटिस्फैक्ट्री, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कम है। और ये इसीलिए है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द रूरल पॉपुलेशन आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड नाउअडेज बिकॉज ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन आपका एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप तो हो गया है, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, ये सब चीजें यूज तो कर पा रहे हैं, बट आज भी ऐसे बहुत सारे फार्मर्स हैं, खास करके जो बीमारू स्टेट्स हैं जैसे बिहार, यूपी, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये सॉरी उड़ीसा और एमपी, मध्य प्रदेश, ये ऐसे जगह हैं जहां पर बहुत ज्यादा गरीब फार्मर्स भी रहते हैं एंड दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द वेदर फॉर द क्रॉप्स, राइट। अब एक टाइम ऐसा आता है कि जब उनकी क्रॉप फेल हो जाती है, खराब हो जाती है, तो उनके पास बेसिक नीड भी फुलफिल करने का पैसा उनके पास नहीं होता है। तो पर कैपिटा इनकम जो है दैट इज वेरी लो, और जब पर कैपिटा इनकम कम है तो उनकी अफोर्डेबिलिटी रेट कम हो जाएगी, अफोर्डेबिलिटी रेट कम है तो उनकी कंजप्शन लो है, डिमांड लो है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है आपके, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंज फॉर द कंपनीज और फॉर द मार्केटर्स, बिकॉज डिमांड जो है वो कभी स्टेबल रहता ही नहीं है रूरल मार्केट में, इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशन ऑफ द एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, अगर उनका फसल अच्छा हुआ एंड फाइनली दे गॉट द गुड प्राइस फॉर दैट, तो हो सकता है उनका डिमांड इंक्रीज हो जाए, बट अगर जस्ट ऑपोजिट हो गया इसके सिचुएशन का तो उनका जो डिमांड हो सकता है वो डिक्रीज हो जाए। सो डिमांड इज नेवर स्टेबल इन द रूरल मार्केट। क्लियर हो गया? दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, Okay. ma'am. Next point is transportation and warehousing. Transportation and warehousing. So I already told you, everyone turn on your camera. Everyone turn on your camera. Every student turn on your camera. Okay. So the next point is transportation and warehousing. So let me tell you that in rural areas there is lack of all weather roads, ठीक है। मतलब अगर आप सड़क को देखेंगे, जो मैंने आपको प्लेस में भी बताया होगा, डिस्ट्रीब्यूशन में भी बताया होगा, कि वहां पर ऐसा सिचुएशन है कि आपके जो रोड्स हैं वो ऑल वेदर रोड नहीं है, यानी कि कच्चा रोड है। अब वो जैसे ही कोई फ्लड हुआ या फिर कोई भी ऐसा सिचुएशन आया तो वो रोड में चलने लायक, या फिर रेनी सीजन आया तो वो रोड पर आप चल ही नहीं सकोगे, बहुत प्रॉब्लम होती है, राइट। सो ट्रांसपोर्टेशन जो है वहां पर गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना, सप्लाई करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ट्रांसपोर्टेशन एंड सप्लाई चेन जो मैनेजमेंट है वो उनके लिए सबसे बिगेस्ट चैलेंज है कि रूरल मार्केट तक अपने गुड्स को सप्लाई करना, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्टेशन है, इंडियन विलेज में आज भी बहुत सारे ऐसे रोड्स हैं जो नियर बाय सिटीज से कनेक्टेड हैं या छोटे मोटे टाउन से कनेक्टेड हैं, लेकिन अगर उनका लेकिन जो इंटरनल रिमोट विलेज है वो प्रॉपरली कनेक्टेड आपके सिटीज या टाउन से नहीं है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज हैं जो हिली रीजन में है, जैसे आपका उत्तराखंड हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज हो गया, वहां पर आपका जो कनेक्शन मतलब कनेक्ट कर पाना, ट्रांसपोर्ट कर पाना गुड्स को, वो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल डिफिकल्टीज और जियोग्राफिकल हिंड्रेंस, राइट। सो इसी वजह से आपका जो रूरल एरियाज है वहां पर गुड्स को एक तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट उतना एफिशिएंट नहीं है रूरल एरियाज में, उसके अलावा हिली रीजन में तो और भी ज्योग्राफिकल जो आपके बैरियर्स हैं वो और भी ज्यादा एक्सेसिव हैं, और उसके बाद वेयर हाउस की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा मान लीजिए कि कोई कंपनी है, जस्ट इमेजिन या जस्ट टेक इट एज एग्जांपल कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो एफएमसीजी गुड्स बनाती है और वो सप्लाई करती है आपकी
विलेज एरियाज तक, है ना। और वहां पर अगर वो बहुत ज्यादा स्टॉक भेज भी देती है या नियर बाय किसी सप्लायर को या टाउन को सप्लाई भी कर देती है, तो ऐसे केस में आपके विलेज में इतना ज्यादा वेयर हाउसेस की फैसिलिटीज है ही नहीं, खास करके कोल्ड स्टोरेज की, उसकी तो बिल्कुल भी फैसिलिटीज नहीं है। तो गुड्स का स्पॉइल हो जाना, खास करके जो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं उनका स्पॉइल हो जाना, दैट इज अ वेरी कॉमन। एंड इफ देयर इज अ नो स्टॉक, तो ऑब्वियसली जब स्टॉक नहीं है तो आप डिमांड को एट द टाइम फुलफिल कर भी नहीं पाओगे। सो योर कैपेबिलिटी विल बी नॉट लाइक दैट that you are able to fulfill the need of the consumer within 1 or 2 days, because again you have to ask for the goods, and again it will take 10 or 15 days to supply to your place. So it is little bit difficult for the transportation and warehousing as well, because of there is a lack of proper infrastructure in rural areas. Next one is ineffective distribution channels. Ineffective distribution channels. So in the case of ineffective distribution channel, so जो जितने भी channels आप use करते हैं rural areas तक पहुंचने के लिए, वो एक तो बहुत long है और बहुत ही ज्यादा ineffective है, cost भी बढ़ जाता है और return भी वैसा नहीं आता है, तो ineffective distribution channel है। नेक्स्ट वन इज, और बहुत कम डीलर्स मिलते हैं जो कि आपके रूरल एरियाज तक गुड्स को पहुंचाने के लिए अग्री करें, क्योंकि उनको मार्जिन कम मिलता है, तो डीलर्स भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व आपके रूरल एरियाज के लिए नहीं होते हैं। नेक्स्ट वन इज द लैक ऑफ many languages and diversity in culture. Many languages and diversity in culture. Just wait for a minute. क्वेश्चन है। हाँ बोलो। मैम जैसे विलेजेस में होते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर को जो कंपनी से वो प्रोडक्ट देती है अपना, तो मैम फ्रेंचाइजी के फॉर्म में भी तो मिल सकता है ना? फ्रेंचाइज के फॉर्म में मिल सकता है, लेकिन कोई भी फ्रेंचाइजर आपको तभी फ्रेंचाइज देगी जब उसका सेल उस एरियाज में दिखेगा जहां पर आप अपने उनके फ्रेंचाइज को लेकर के स्टोर ओपन करोगे। अब एग्जाम्पल में जो डोमिनोज है, तुमने नोटिस किया होगा कि डोमिनोज एक ले लेते हैं, QSR रेस्टोरेंट, जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट कहते हैं इनको, एक QSR रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम डोमिनोज का। तो जो डोमिनोज है, यू विल सी दैट कि वो ज्यादातर आपके मार्केट एरियाज में होगा प्रेजेंट, है ना, जहां पर रश बहुत ज्यादा होता है, लोग का आना जाना बहुत ज्यादा है, या बड़े बड़े सिटीज में होता है। तो ये क्यों होता है, व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज एवरी कंपनी want to increase the profitability and increase the brand equity of that company, right? लेकिन अगर वो देखती है कि सेल होना मुश्किल है, और फ्रेंचाइज आपको हर एक कंपनी का तो मिलता नहीं है। हाँ, बिग बाजार का ये अप्रोच स्टार्ट हुआ था, दे स्टार्टेड बेसिकली ओपनिंग द स्टोर इन द स्मॉल टाउन्स, लेकिन बहुत ज्यादा लॉस हुआ था उनका, ठीक है। ऐसे से हाँ, इसी वजह से आपकी हर कंपनी अपनी फ्रेंचाइज आपको विलेज एरियाज में स्टार्ट करने के लिए नहीं दे सकती है। 500-1000 मान लीजिए एक विलेज में अगर लोग रहते हैं, रिसाइड करते हैं, तो उनके कस्टमर्स मुश्किल से उसमें 100 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, इफ यू आर स्टार्टिंग अ पिज्जा कंपनी या पिज्जा स्टोर, राइट? तो 50 कंपनी के लिए यू कैन नॉट एबल टू बेसिकली इंक्रीज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कंपनी, और इट विल बी वेरी अनप्रॉफिटेबल फॉर द इंडिविजुअल पर्सन। समझ में आ रही है बात? सो फ्रेंचाइज के थ्रू ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं कि शुरू नहीं होगा, बट जो रूरल मार्केट वो इतना डिस्पर्स्ड है ना, कि जैसे पटना में आपके अगर पॉपुलेशन मान लीजिए 50 लाख है, 1 करोड़ है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, तो उतना विलेजेस में है ही नहीं। तो यहाँ पर कितने ज्यादा कंज्यूमर्स हैं और वहां पर देखिए कितने कम मतलब है कंज्यूमर्स। तो ओवरऑल रूरल एरियाज में ज्यादा है अर्बन से, लेकिन इतना डिस्पर्स्ड ना, फैले हुए हैं हर जगह, तो कैसे टारगेट करोगे, मुश्किल नहीं है। यस मैम। इसीलिए अभी फ्रेंचाइज का ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है, लेकिन होप सो, देखते हैं आगे चल के। हाँ बोलो मोनिका। मैम जैसे हम लोग डोमिनोज हो गया या KFC हो गया, तो ये लोग अपना फ्रेंचाइजी देते हैं, पर मैम FMCG में तो जनरली कोई फ्रेंचाइजी देता भी नहीं है। FMCG में फ्रेंचाइज, FMCG की कंपनी जैसे ITC है, वो फ्रेंचाइज नहीं देती है, लेकिन अगर कोई FMCG का कोई रिटेल आउटलेट है जो FMCG गुड्स के साथ डील करता है, जैसे बिग बाजार हो गया, रिलायंस फ्रेश हो गया, ऐसी चीजें हो, ऐसे स्टोर्स हो गए, तो वो अपनी फ्रेंचाइज आगे दे सकते हैं। आगे इस बात समझ में मोनिका?
यस मैम। तो मैम यहाँ पे बेसिकली हम लोग जब विलेज में है वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही हम लोग वहाँ पे मार्केट अपना कैप्चर कर सकते हैं। हाँ, सो बेसिकली देखो उसका ना बहुत बड़ा रीजन भी है कि आप रूरल एरियाज में अगर गुड्स पहुंचाना चाहते हो तो उसके लिए एक प्रॉपर डीलर चाहिए होगा। 500 लोगों के बीच में गुड्स को बेचने में कोई इंटरेस्टेड है भी नहीं, समझ रहे हो ना। ये बहुत बड़ा रीजन है कि देयर इज अ लैक ऑफ रिटेलर्स, देयर इज अ लैक ऑफ द डीलर हु इज गोइंग टू सेल द गुड्स टू द विलेज एरियाज। ये वही लोग कर सकते हैं जिनके पास 10 या 20 विलेज में प्रोडक्ट को सेल करने की कैपेसिटी हो। एक विलेज के लिए कोई भी एक डीलर काम करेगा भी नहीं। आई बात समझ में मोनिका? ठीक यस है, मैम। चल। थैंक यू मैम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज मेनी लैंग्वेजेस एंड डाइवर्सिटी इन कल्चर। तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि जैसे अर्बन एरियाज में आजकल जो ज्यादातर अर्बन एरियाज हैं दैट इज इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द वेस्टर्न कल्चर एंड द रूरल एरियाज आर स्टिल वेरी मच रूटेड विद देयर कल्चर। ये तो चीज हम जानते हैं। ऐसे बहुत सारे रीजन हैं कि वो अपने डायलेक्ट और लैंग्वेज को जानते हैं बट दे डोंट नो द इंग्लिश और हिंदी। so this is also one of the biggest problem in India. If you will go to the southern area of India, you will go to the तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बिल्कुल गांव में अगर आप जाओगे तो वहां आज भी ऐसा सिचुएशन है कि दे नो तमिल, दे नो तेलुगु तेलुगु बट दे डोंट नो टू स्पीक हिंदी और इंग्लिश। सो ऐसे एरिया में इस टाइप के जो कंज्यूमर्स हैं जो बिल्कुल लोकल लैंग्वेज को ही जानते हैं और उनका जो बेसिकली जो रहन सहन और जो उनका कल्चर है दैट इज वेरी मच रूटेड विद द एंशिएंट टाइम एंड ऑल। सो ऐसे लोगों को कम्युनिकेट करना, इनको कन्वेंस करना, मोटिवेट करना गुड्स को खरीदने के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। इसीलिए जैसे आपका बिहेवियर और जो लैंग्वेज है, जो आपका कल्चर है, वो एक ऐसा है जो कस्टमर्स के पूरे ओवरऑल परचेजिंग पैटर्न को इफेक्ट करता है ना। तो it is also one of the barrier, it is one of the challenge for the rural areas to communicate with the people who don't know Hindi or English but they know only their local languages. आई बात समझ में? Yes ma'am. This point is clear. Next one is lack of communication system. So quick communication facilities, जैसे आप देखते हो कि अगर कल को अगर किसी को भी आज के टाइम पर भी अगर कोई भी जल्दी इंपॉर्टेंट किसी से बात करना होता है तो वी आर यूजिंग व्हाट्सएप, वी आर यूजिंग फेसबुक और समटाइम फॉर द फॉर्मल कन्वर्सेशन वी आर यूजिंग द ईमेल फैसिलिटी, राइट। फैसिलिटीज यूज करते हैं हम लोग कम्युनिकेशन के लिए। इंटरनेट का टेली कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है अर्बन एरियाज में, लेकिन रूरल एरियाज में इस तरीके का कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है। अभी ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे टेलीफोन की भी सुविधा नहीं है, आज भी है ये इंडिया में। तो ऐसे केस में उन तक कम्युनिकेट करना कितना मुश्किल है। सिर्फ एक टेलीविजन है और प्रिंटिंग मीडिया, आज भी कन्वेंशनल मीडिया में बहुत सारे एरियाज हैं जो आपके डिपेंडेंट हैं। तो कम्युनिकेशन नहीं होना भी एक रीजन है कि जो मार्केटर है वो उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो द लैक ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes ma'am. Okay, next point is dummy brand, dummy brands, dummy brands, dummy brands, डमी ब्रांड्स। एक मिनट रुकिएगा जरा, बताया था स्प्यूरियस गुड वाला बात, वही चीज है कि लिटरेसी बहुत ज्यादा कम है और ब्रांड का नॉलेज भी कम है। जैसे आज भी ये चीज ऐसा नहीं है कि दिस इज हैपनिंग विद द रूरल पीपल, समटाइम्स दिस इज हैपनिंग विद द अर्बन पीपल, कि उनको उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है डिफरेंशिएट कर पाना ओरिजिनल और फेक गुड्स के बीच में। तो ये जो डमी ब्रांड्स है ना, रूरल कंज्यूमर में ऑलरेडी जो रूरल मैन्युफैक्चरर होते हैं, जैसे छोटे मोटे घर पर ही अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठा लिया, जैसे छोटे मोटे लोकल टॉफी चॉकलेट्स ऐसे बनाना शुरू करते हैं, दे आर यूजिंग द नेम ऑफ द ब्रांडेड कंपनीज, लाइक जैसे डेयरी मिल्क को क्या कर लिया, डायरी मिल्क, राइट। So they are basically selling such kind of goods in the rural market and it is sold very easily because the style of packaging is somehow it is very similar or identical of the original brand. So the dummy brands are also one of the reason that it is basically a challenge for the brands or companies to sell their product in the market. And इससे पता है क्या होता है कि the trust of the people are also lost by the company. That why this is happening,
क्योंकि अगर आपने डेयरी मिल्क खाया और आपको एकदम बहुत अजीब सा टेस्ट आया, उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, सूटेबल नहीं लगा, या फिर कॉस्ट के हिसाब से वो आपको नहीं लगा, तो ऐसे केस में आप अगेन जो ओरिजिनल ब्रांड वाला जो प्रोडक्ट है वो भी ट्राई करने में हेजिटेट करोगे। सही बात है? ट्रू है? सही बात है या नहीं? यस मैम। इसीलिए, और कम्युनिकेशन भी मुश्किल है। नहीं तो आजकल तो अर्बन एरियाज में भी आप देखो कहीं भी कम्युनिकेशन होता है तो दे आर बेसिकली टेलिंग यू दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल एंड द रियल ब्रांड। ऐसे होलोग्राम वगैरह भी वो यूज करते हैं, जो मैंने आप लोग को क्लास में बताया था। तुम लोग बिलीव नहीं करोगे कि ये लगभग 1-2 रुपए का लॉस नहीं होता है ये रूरल एरियाज को। 7500 करोड़ का लॉस सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी फेस करती है, 3000 करोड़ का लॉस अराउंड फार्मेसी कंपनी फेस करती है, एंड लगभग 18 to 19,000 करोड़ का लॉस जो है वो आपकी एफएमसीजी कंपनी फेस करती है बिकॉज ऑफ द स्प्यूरियस एंड द डमी प्रोडक्ट और ब्रांड। तो आई गेस दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस मैम, यस मैम। हाँ, एक और पॉइंट है, दैट इज सीजनल डिमांड। सो सीजनल डिमांड इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन द रूरल कंज्यूमर्स आर इंगेज्ड इन, एंड दैट इज एग्रीकल्चर। एंड एग्रीकल्चर की वजह से जिस तरीके से एक साल में अगर 2 बार क्रॉप हो रहा है या 1 महीने में क्रॉप का जो हार्वेस्टिंग वगैरह हो रहा है, तो उसी समय आपके पास पैसा है, तो उस समय के हिसाब से यू आर बेसिकली डिमांडिंग फॉर द गुड्स। लेकिन ऑल द टाइम डिमांड ऑफ द गुड्स इज नॉट स्टेबल, so that is also one of the reason for that is also one of the challenge। clear हो गया? These points are clear? Yes ma'am। Okay, next one is, यहां तक समझ में आया है ना? yes अभिनव। यस मैम। मैम बोलो बेटा। मैम पता कैसे चलेगा कि कौन डमी ब्रांड है और कौन ओरिजिनल ब्रांड है? वही तो क्वेश्चन है कि द पीपल आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज दैट इट इज अ ओरिजिनल और इट इज अ फेक गुड। दैट इज द यही तो रीजन मैं आपको बता रही हूँ कि ये प्रॉब्लम है। हम लोग चैलेंजेस कर रहे थे, तो ये प्रॉब्लम है क्योंकि रूरल पीपल की लिटरेसी रेट कम है, और आइडेंटिफिकेशन कर पाना कि कौन ओरिजिनल है और कौन फेक है वो भी इसलिए मुश्किल है क्योंकि वो बहुत सिमिलर चीजों को यूज करते हैं, जैसे सिमिलर पैकेजिंग स्टाइल। जैसे आप लोगों ने देखा होगा डेयरी मिल्क में वायलेट कलर का एकदम शाइनिंग पेपर को यूज किया जाता है, गोल्डन पेपर भी इनसाइड गोल्डन आपका पेपर यूज किया जाता था। तो वो सेम, सब कुछ सेम करते हैं, ठीक है, बस नाम में थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, जिसको बोलते हैं हाफ ये इमिटेशन, ठीक है, हाफ ये इमिटेशन कहते हैं, ठीक है। एक होता है आपका फुल इमिटेशन। फुल इमिटेशन में आप क्या करते हो, फुल कॉपी कर लेते हो, जैसा नाम है सेम नाम यूज करो बट नकली प्रोडक्ट सेल करो, ठीक है। सो इसी को तो रिकॉग्नाइज करना मुश्किल है। मैंने क्या बोला कि ये सिर्फ रूरल एरियाज में ये प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे अर्बन एरियाज में भी ये प्रॉब्लम है कि लोगों को क्या होता है, जैसे कभी मैं हूँ, कभी जल्दी में हूँ, बहुत टाइम कम है, so we are not looking for product a lot but we are purchasing it very fastly, right? So because of the lack of concentration and because of the lack of knowledge, the people are purchasing the spurious or the dummy goods. So it is one of the hindrances or challenge for the companies or marketers. अभिनव समझ में आया? अभिनव? Yes ma'am, yes ma'am। This point is clear? Yes ma'am। ओके, नेक्स्ट वन इज द रूरल मार्केटिंग प्रमोशनल स्ट्रैटेजी में मैंने आप लोगों को बताया था कि पर्सनल सेलिंग क्यों इतना इफेक्टिव है, वो थोड़ा देख लेते हैं। सो पर्सनल सेलिंग ना सबसे ज्यादा यूटिलाइज होता है आपके प्रमोशन जो है वहां जो रूरल एरियाज में होता है, सबसे ज्यादा पर्सनल सेलिंग को यूज किया जाता है। क्योंकि देखो सेल्स पर्सन, क्योंकि जो रूरल कंज्यूमर्स होते हैं उनको कई बार एडवर्टीजमेंट दे आर नॉट एबल टू गेट द नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट एंड ऑल। सो द इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन के लिए आप पर्सनल सेलिंग जो है वो सबसे इफेक्टिव है। यहाँ पर जो सेल्स पर्सन है और जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं, दे आर बेसिकली इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, एंड एक प्रॉपर ट्रेनिंग और गाइड या फिर प्रॉपर इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग और नॉलेज दिया जाता है सेल्स पर्सन को, और वो सेल्स पर्सन जो है उस प्रोडक्ट को प्रॉपरली प्रमोट करता है, इन्फ्लुएंस करता है कस्टमर को, ठीक है। तो ये पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है व्हेन देयर इज अ फेस टू फेस इंटरेक्शन एंड द ओरल कन्वर्सेशन इज डन। फेस टू फेस इंटरेक्शन है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तुरंत से आंसर मिलेगा। सही बात है या नहीं? सही बात है? यस मैम। सही बात है ये? यस मैम।
कि कई बार क्या होता है कि जैसे आपको फेस टू फेस जब जैसे मैं आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ एंड यू इफ यू हैव क्वेश्चन यू आर आस्किंग मी एंड आई एम गिविंग द आंसर ऑफ दैट, सो योर ऑल द डाउट्स आर क्लियर एट दैट टाइम ओनली, है ना. तो दिस इज अ टू वे कम्युनिकेशन वेयर यू हैव ऑल्सो राइट टू स्पीक अबाउट द और यू हैव फुल राइट टू आस्क द क्वेश्चंस, बट दिस इज अ वन ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन. ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट है. लेकिन अगर आप ये नोटिस कीजिएगा कि जो एडवर्टीजमेंट हो रहा है और जैसे मैगी का एडवर्टीजमेंट सामने आ जाता है तो हमें वो बोलते हैं कि 2 मिनट्स में मैगी, बट इफ वी हैव द क्वेश्चन कि 2 मिनट में मैगी कैसे बनेगा, सो वी कैन नॉट नॉक द टेलीविजन और आस्क कि 2 मिनट में मैगी कैसे बन रहा है ना. बट इफ द पर्सन इज इन फ्रंट ऑफ यू देन डेफिनेटली यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन कि यू कैन आस्क द क्वेश्चन अबाउट द प्रोडक्ट. सो रूरल पीपल जो है इलिटरेसी ज्यादा है और रिजिडनेस ज्यादा है, ठीक है. तो इसी वजह से उनको फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन और जो प्रमोशनल स्ट्रैटेजी है, पर्सनल सेलिंग है, दैट इज मोर इफेक्टिव. ठीक है, समझ में आया. एक जो गुड सेल्स पर्सन होगा उसकी क्या क्वालिटी हो सकती है, जब वो रूरल एरियाज में सेल कर रहा हो या अर्बन एरियाज में सेल कर रहा हो, जो गुड सेल्स पर्सन है उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है उसका नॉलेज और उसका स्किल, ठीक है. और प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बेनिफिट के लिए जो आप यूज करें पॉइंट, उसकी कैपेबिलिटी या फिर कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए पर्सन को, कि वो आपको ऐसा समझाए चीजों को कि जो आप चीजों को ग्रैब कर पाए. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज सेलिंग दिस बॉटल विदाउट वाटर, so how you are going to influence the person? Are you going to speak about that it is a normal plastic bottle? No, you will say that what this प्लास्टिक बॉडी है लेकिन इसमें कोई स्मेल नहीं आएगा, बहुत ही हेल्दी रहेगा, पानी में कुछ जर्म्स नहीं होगा, बहुत सारी चीजें आप बताओगे ना. इफ यू आर सेलिंग अ नॉर्मल बॉटल, है ना, गर्मी का टाइम है, इट विल बी यूटिलाइज फॉर द फ्रिज. तो इसी तरीके से आप कौन से वर्ड्स को यूज करते हो इंट्रैक्शन के लिए, वो होना चाहिए. गुड सेल्स पर्सन में नॉलेज होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, कन्विंसिंग पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिटी होनी चाहिए कि ऐसा समझाओ कि सामने वाला समझ जाए उन चीजों को. क्लियर हो गई बात. और सेल्स पर्सन में एक और क्वालिटी होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट को सेल करते टाइम उसके कंज्यूमर के नीड से उसको कनेक्ट और लिंक कर पाए, क्योंकि कंज्यूमर का जब तक अटेंशन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है अगर उनकी नीड कम है तो उनकी नीड के साथ आप प्रोडक्ट को लिंक कर पाओ. आ रही बात समझ में क्लास? दिस पॉइंट इज क्लियर क्लास? यस मैम. समझ में आ रहा है? ओके. नेक्स्ट वन इज पर्सनल सेलिंग इन द रूरल रीजन. सो बहुत सारे मार्केटर्स हैं जो पर्सनल सेलिंग को फिजिबल नहीं मानते हैं. बहुत सारे मार्केटर्स हैं जो पर्सनल सेलिंग को ही मतलब the most of the marketer thinks that personal selling is not feasible in rural areas because it is very much dispersed market. बहुत ही ज्यादा फैला हुआ scattered population है, number of villages बहुत high है, but जो population का number है हर village में that is basically not similar or not same. ठीक है. So thou still not a prevalent practice adopted by the national level marketers. लेकिन personal selling जो है वो local manufacturer या फिर आपके छोटे मोटे ब्रांड या फिर छोटे मोटे कंपनीज के द्वारा कई बार यूज किया जाता है. अब अभी भी मैं बताती हूँ रूरल एरियाज में जो आज भी परचेजिंग जो पैटर्न है वो ज्यादातर मेला हाट या फिर रेडी वाले से जो हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, जो रोड साइड जो प्रोडक्ट लगाते हैं, उनसे बहुत ज्यादा उनका मतलब परचेजिंग होता है गुड्स का. सो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जब आप एक रूरल एरियाज में गुड्स को सेल करते हो तो सेल्स पर्सन को कैसी चीजें, क्या क्या चीजें उनमें होनी चाहिए, क्या क्या. मैंने तो अभी आपको एक नॉर्मल सेल्स पर्सन की क्वालिटी बताई, बाकी मैं बताती हूँ कि और क्या क्या चीजों की जरूरत है व्हेन यू आर सेलिंग द गुड्स इन द रूरल एरिया. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज द फैमिलियरिटी या फिर बोल सकते हैं फैमिलियर विद द रूरल मार्केट. सो इफ यू आर अ सेल्स पर्सन एंड यू urban areas and you are now going to a small village in Bihar and you want to sell the product, before selling the product you have a knowledge about that village, you have knowledge about the people, है ना. इंफॉर्मेशन नॉलेज होनी चाहिए. कोई सेल्स पर्सन जो रूरल एरियाज में फैमिलियर नहीं है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रूरल एरियाज का स्कैटर्ड है, तो ऐसे केस में रूरल जो भी सेल्स पर्सन है उसको बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी रूरल पीपल के साथ डील करने में, बात करने में, है ना, कम्युनिकेशन करने में, कम्युनिकेट करने में.
सो फैमिलियरिटी या फिर फैमिलियर होना चाहिए पर्सन का किसके साथ, रूरल एरिया के साथ. सेकेंड वन इज प्रोफिशिएंसी इन द रूरल लोकल लैंग्वेज. प्रोफिशिएंसी इन द लोकल लैंग्वेज का मतलब क्या है कि आपका जो लोकल लैंग्वेज है, जैसे मान लीजिए भोजपुरी बिहार में बोला जा रहा है, कहीं मैथिली बोला जा रहा है, कहीं पर मगही बोला जा रहा है, तो आपको उस लोकल एरिया में जहां पर भी आप गुड्स को सेल कर रहे हैं, आपको वहां के लोकल लैंग्वेज में बात करना, कम्युनिकेट करना आना चाहिए. ये पता है क्यों जरूरी है, मैं बताती हूँ. लैंग्वेज का इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है लोगों पे कि if you are speaking Bhojpuri and if the person started giving you answer in Bhojpuri, they will think that you both are the same community या you are very much, you are a part of a family. ऐसा लोगों का ना अपनापन आपके साथ हाँ अपनापन अटैचमेंट हो जाता है ना. लेट मी गिव यू वन ऑफ द एग्जाम्पल. देखो, it's a very different, matlab it's not basically related with the rural market, but I'm just giving the basically information. मैं एक बताती हूँ कि earlier when I was working in Vivo Mobiles, so वहां पर Chinese लोग थे, ठीक है. The people who were in the higher position, they were Chinese, and the people who are working as a translator there, they are very much attached to those people. Why? Because they are also able to speak in Chinese language, right? So the language is basically make a bonding or relationship. ठीक है, बॉन्डिंग और रिलेशनशिप बनाने में बहुत हेल्पफुल है, आपको एक अपनापन देता है, जो बच्चे ने बोला बिल्कुल ये चीज है. तो अगर आप उनको लोकल लैंग्वेज में समझाओगे तो वो आपकी बातों को ज्यादा वैल्यू करेंगे, है ना. सो फ्लुएंसी होनी चाहिए आपकी लोकल लैंग्वेज में. आप जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर सेल कर रहे हो प्रोडक्ट को और इंग्लिश यूज कर रहे हो, वर्ड्स यूज कर रहे हो, और आपने बिल्कुल आप किसी रिमोट एरिया में गए बिहार के, वहां भोजपुरी बोला जा रहा है और आप वहां पर इंग्लिश यूज करोगे, तो आपको लगता है कि दे विल लर्न और दे विल understand your words or they are going to give you value for that? No, obviously no. जो चीजें समझ नहीं आएंगी उसके लिए कोई भी पर्सन अपना टाइम नहीं देगा, है ना. सो आपकी इफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज में. एक्वेटेंस विथ द रूरल फोक. रूरल फोक मतलब जो रूरल पीपल है उनके साथ आपका थोड़ा जान पहचान होना चाहिए, लोग आपको जानते हो. सोशल ग्रुप वहां के जो लोग हैं या मीटिंग्स जो करते हैं, सरपंच हो, ओपिनियन लीडर आपको जानते हो, या फिर आपका थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन उनको पता हो, आप थोड़ा बहुत उनके बारे में जानते हो, तो दैट विल आल्सो हेल्प यू टू सेल और टू द इन्फ्लुएंस द रूरल कंज्यूमर. नेक्स्ट वन इज बी परसुएसिव बट नॉट पुशी. ठीक है. सो व्हाई दिस वर्ड इज यूज्ड कि जैसे एक पुश स्ट्रैटेजी होता है ना, कि जहां पर रिटेलर्स पुश करते हैं कंज्यूमर्स को कि आप प्रोडक्ट खरीदिए, है ना. लेकिन एक होता है पुल स्ट्रैटेजी, जहां पर मार्केटर्स इतना अच्छा ऑफर और आपको वैरायटीज देते हैं कि आप खुद बोलते हो कि नहीं मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है. सो यहाँ पर वही चीज बोला जा रहा है कि अगर आप परसुएसिव बनिए, उनको एलैबोरेट कीजिए, समझाइए उनको, उनके नीड के हिसाब से बताइए, उनकी जरूरत बताइए, क्यों रिक्वायरमेंट, बेनिफिट सब कुछ बताइए, लेकिन उनको ना जबरदस्ती, उनको ऐसे नहीं पुश नहीं करना है खरीदो खरीदो. नो, you cannot force or you cannot implement the things on that person without his consent. उनकी रजामंदी के बिना आप उन पे कुछ चीज लागू नहीं कर सकते हो. ठीक है. एक गुड पर्सन जो होगा वो अपने वर्ड से ही परसुएड करेगा, इन्फ्लुएंस कर देगा, लेकिन इस टाइप का नहीं होगा कि जो आपको एक बोल सकते हैं ना कि पुश करेगा कि प्रोडक्ट को खरीदो. रूरल कंज्यूमर्स जो होते हैं ना वो स्केप्टिकल होते हैं थोड़े नेचर से, मतलब दे आर वेरी भोले भाले प्योर टाइप के लोग होते हैं. तो कई बार ऐसा होता है कि कोई न्यू प्रोडक्ट आता है तो उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, वो नए प्रोडक्ट को यूज करने में हेजिटेशन होता है. और अगर आप उनको पुश करोगे या फिर जबरदस्ती कहोगे उनके कंसेंट के बिना प्रोडक्ट खरीद लो, तो उस केस में वो और भी ओफेंड, मतलब बोल सकते हैं ना एक प्रोटेस्ट वाले बिहेवियर में चले जाएंगे, यानी आप बोलोगे वो नहीं मानेंगे. ठीक है. तो उनका एटीट्यूड बिल्कुल बदल जाएगा उस गुड्स के लिए. सो परसुएट कीजिए, समझाइए, बट डोंट पुश द रूरल पीपल या रूरल फोक. नेक्स्ट वन इज पब्लिक रिलेशन. सो पब्लिक रिलेशन इन केस ऑफ कस्टमर्स. सो आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे सकते हो, फोक को बता सकते हो. इफेक्टिव रिलेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज करो, वहां पर गुड्स के बारे में बताओ. ठीक है. रूरल एरियाज या रूरल पीपल या फोक को यूज करो आप एडवर्टीजमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए. एक गांव या विलेज को यूज करो जब आप प्रमोशन करते हो तो. सो यू कैन ऑल्सो बिल्ड अ पब्लिक रिलेशन इन दैट पर्टिकुलर एरिया या फिर इन रूरल एरिया.
Okay, next one is type of sales promotion. What is sales promotion? I am going to elaborate it. Just wait for a minute. Okay, let me tell you what is the meaning of sales promotion. We are going to complete it in the next class, but let me elaborate it. Sales promotion जो है, that is a short time tactics or it is a part of the promotion mix. सेल्स प्रमोशन हम कुछ टाइम के लिए यूज करते हैं, जैसे कि हम कूपन देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, वेरियस ऑफर्स देते हैं. तो इससे क्या होता है, आपका जो फुटफॉल्स या फिर रश या ट्रैफिक जो है आपके स्टोर में इंक्रीज होता है एंड डिमांड ऑफ प्रोडक्ट विल बी इंक्रीज. सो इट इज बेनिफिशियल व्हेन यू वांट टू क्लियर द स्टॉक. जब आप स्टॉक क्लियर करना चाहते हैं, जब आप इंक्रीज करना चाहते हैं अपने प्रॉफिट को, रेवेन्यू को इंक्रीज करना चाहते हैं, ब्रांड इक्विटी इंक्रीज करना चाहते हैं, तो कई कंपनी सेल्स प्रमोशन देती है. जब आप न्यू कस्टमर को एक्वायर करना चाहते हैं, अपने नए प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में सेल्स प्रमोशन का यूटिलाइजेशन कंपनीज करती हैं. सो सेल्स प्रमोशन अगर रूरल एरियाज में बात किया जाए तो कौन कौन टाइप के टेक्निक्स को, टूल्स को हम यूज कर सकते हैं सेल्स प्रमोशन के लिए. सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट इन द नेक्स्ट क्लास, राइट? Okay, anyone have any doubt in any of the point whatever we discussed? Anyone have any doubt? No, ma'am. Okay. कोई भी डाउट है जो समझ नहीं आया हो, पूछना है? No, ma'am. Okay, so see you all in the next class. Thank you.